व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्स्ट्रक्टिव डेजर्शन? आणविक अभित्यजन जो है उससे आप क्या समझते हैं इस हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत? कॉन्स्ट्रक्टिव डेजर्शन, इन दिस डेजर्शन a spouse creates a situation or the conduct himself or herself in a manner that the other spouse क्या है? किसी में भी मेट्रो फर्स्ट में ही करवा दो। हाँ, in this desertion, constructive desertion, a spouse creates a situation or conduct himself or herself in a manner that the other spouse is compelled to leave the matrimonial house. The spouse who leaves is not considered the one who deserted the marriage. Rather, the spouse whose action caused the separation is the deserter in the eyes of the law. And the Jyotish Chandra versus Meena 1970 Calcutta High Court's a leading judgment upon the constructive desertion. आणविक अभित्याग क्या है? विवाह का एक पक्षकार अपने कार्य और आचरण के द्वारा दूसरे पक्षकार को वैवाहिक घर छोड़ने हेतु मजबूर करता है, विवश करता है। विवश करने वाला पक्षकार जो है वो क्या है? आणविक अभित्याग का दोषी होगा। पति जो है इस तरीके का आचरण करता है पत्नी के साथ, पत्नी उस वैवाहिक घर को छोड़ने के लिए विवश हो जाती है, तो आणविक अभित्याग किसने किया? पति ने किया है। जो घर छोड़ के गई है उसने डेजर्शन नहीं किया। डेजर्शन जिसके एक्शन के कारण, जिसके कंडक्ट के कारण है वो घर छोड़ना पड़ा, वो आणविक अभित्याग का है, वो दोषी होगा। और ज्योतिष चंद्र बनाम मीरा 1970 कलकत्ता हाई कोर्ट का इस बिंदु पे जो है वो इंपॉर्टेंट जजमेंट भी है, और इसमें भी यही कहा गया जो ऊपर अपन ने इसका मीनिंग है वो लिखा है। लिमिटेशन ऑन द ग्रांटिंग द मैट्रिमोनियल रिलीफ अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत जो है वैवाहिक अनुतोष देने में क्या बाधाएं या निर्बंधन है? सेक्शन 23 सबसेक्शन फर्स्ट ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट आर कंसर्न टू द सच restriction or limitation. Restriction or limitation on the granting matrimonial relief in any proceeding under this act, whether defendant or not, if the court is satisfied that any of the grounds for granting relief exist and the petitioner except in cases where the relief is sought by him on the ground specified in the subclause A, subclause B, subclause C of the clause 2nd of the section 5 is not in any way taking the advantage of the his, is not any way take the advantage of the his or her own wrong or disability for the purpose of the such relief. It is the first restriction. If the parties himself is the guilty or there is a fault of the party who is the petitioner, court shall not grant the any relief in favor of that petitioner. Own wrong or disability, no one can take the benefit of the own wrong or the own fault. It is based upon that principle. Where the ground of the petition is the ground specified in the clause first of subsection first of section 13, that is the adultery. The petitioner has not in any manner been accessory to or connived at or condoned the act or acts complained of, or where the ground of the petition is cruelty, then the petitioner has not in any manner condoned the cruelty. If there is an act of the one of spouse is adultery, the another spouse is accessory in that act, connived at and condone that act of the other spouse, then court shall not grant the relief of the divorce or the judicial suppression, etc. And in case of cruelty, the another spouse, the innocent party, condone that conduct of the guilty party, so then court shall not grant the relief in favor of that petitioner. When a divorce is sought on the ground of mutual consent under section 13b, such consent has not been obtained by force, fraud or undue influence. If the consent has been obtained by the force, fraud or the undue influence, court shall not pass any decree in favor of that party. The petition not being a petition presented under section 11 is not presented or prosecuted in the collusion with the respondent. If there is a collusion with the respondent for obtaining the government job or any other purpose, etc., then the court shall not grant the relief in favor of that petitioner. But in case of the void marriage, to declare the marriage null and void,
the collusion is not a restriction or limitation to grant the relief by the court. There has not been any unnecessary or improper delay in instituting the proceeding. If there is an unnecessary or improper delay on the part of the petitioner, the court shall not grant the relief in favor of that petitioner. And there is no other legal grounds why the relief should not be granted, then and in such a case but not otherwise, the court shall decree such relief accordingly. If fall under any of the categories which is provided under clause A to E, then court shall not grant the relief or pass the decree, and matter not fall under any of these clauses, then court shall pass a decree or grant the relief to the concerned party. वैवाहिक अनुतोष प्रदान करने में अवरोध या जो बाधाएं जो है, सबसे पहले अब देखेंगे, ये एडिशन है, बैरेक्ट में नहीं दे रखा मेरे ख्याल से, ये किताब से लिया हुआ है। कट्टर सबूत से आधारों को साबित करना, ग्राउंड्स मस्ट बी प्रूव्ड बाय द स्ट्रिक्ट प्रूफ, ग्राउंड मस्ट बी प्रूव्ड बाय स्ट्रिक्ट प्रूफ। कट्टर सबूत से केवल प्रिजम्पशन आदि के बेसिस पर नहीं होगा, कट्टर सबूत से जो है वो आधार साबित करना होगा, चाहे वो अडल्ट्री है, चाहे क्रूरटी है और एनी अदर ग्राउंड्स है। स्वयं के दोष या निर्योग्यता का लाभ नहीं उठा सकता, सिवाय धारा 5 सेकंड के अंदर जो है एट द टाइम ऑफ मैरिज वो अनसाउंड माइंड आदि था, तो स्वयं की डिसेबिलिटी का भी फायदा उठा सकता है, उस मैरिज को अन्यूल डिक्लेयर किया जा सकता है, सेक्शन है वो 12 के अंदर। अदरवाइज 5 सेकंड के अलावा कोई भी पार्टी अपने है वो स्वयं के फॉल्ट या डिसेबिलिटी का बेनिफिट नहीं ले सकता। जारता की दशा में अर्जीदार उपसाधक रहा है या मौन अनुकूल रहा है या उपकर्षण या माफ कर दिया है, तो उसके पक्ष में जो है अर्जीदार के पक्ष में रिलीफ नहीं दिया जाएगा। ऐसे सर कन्वेड एट और कंडोन। क्रूरता की दशा में जो है माफ करके उसके साथ सहवास आदि किया या उसके कंडक्ट को माफ कर दिया, तो उस कंडीशन में है वो क्रूरटी के बेसिस पर रिलीफ है वो कोर्ट नहीं देगा, क्योंकि उस माफ करने के द्वारा आपने रिलीफ प्राप्त करने के राइट को खो दिया है। पारस्परिक सहमति की दशा में सहमति कपट बल या असमयक असर से प्राप्त की गई है, तो वहां पर भी कोर्ट जो है वो अनुतोष नहीं देगा, डिग्री नहीं पारित करेगा। अर्जीदार और प्रत्यर्थी के बीच में दुर्भी संधि है, मिली भगत है, जालसाजी है, कुछ कोल्यूजन है, तो उस केस में भी कोर्ट रिलीफ नहीं देगा। बट धारा 11 में मैरिज को वॉइड, वो तो नल एंड वॉइड है, वैसे ही एब इनिशियो वॉइड है, डिग्री नहीं भी पारित करेंगे तो भी वॉइड है। 11 के केस में कल्यूजन भी है, फिर भी कोर्ट है वो रिलीफ देगा। अर्जी पेश करने में अनावश्यक और अनुचित विलंब है वो किया गया है, तो उस कंडीशन में भी कोर्ट जो है वो रिलीफ है वो नहीं है वो देगा, यदि डिले अननेसेसरी है और इम्प्रॉपर है और अन्य कोई विधिक बाधा भी नहीं होनी चाहिए, इनके अलावा भी कोई लीगल बार है वो नहीं होना चाहिए, तो उस कंडीशन में कोर्ट जो है वो रिलीफ दे सकता है। ग्राउंड व्हाट इज डिफरेंस between the void and voidable marriage, या what are differences between the void and voidable marriage। शून्य और शून्यकर्णी विवाह में अंतर क्या है, ऐसा मेन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। void marriage under section 11 of the Hindu Marriage Act and it is in section 12, there is no effect of the void marriage in the eye of the law, in the eye of the law, whereas voidable marriage is a valid marriage until declared annual by the decree of the court या nullity of the decree of the court. There is no certain of rights and duties amongst the parties of the marriage, whereas in case of the voidable marriage exist the rights and duties amongst the parties until the marriage declared annual by the court. In case of the void marriage, the party to that marriage remarry would not be guilty of the bigamy, whereas in case of voidable marriage any party of the marriage remarry shall be guilty of the bigamy under section 494 and 495 of the IPC or 82 of the BNS. Void marriage can be nullified on the instance of the any party to that marriage, whereas voidable marriage may be annulled on the instance of the aggrieved party except the clause B of the सबसेक्शन फर्स्ट ऑफ द सेक्शन 12। शून्य और शून्यकर्णी विवाह में क्या आधार हो सकती है, सेक्शन नंबर ऊपर ब्रैकेट में ही मेंशन करने हैं, आपको अलग से अंतर नहीं बताना है कि ये 11 में और ये 12 में। शून्य विवाह का विधि की दृष्टि में कोई प्रभाव नहीं होता है, जो है वो वॉइड मैरिज हैविंग नो इफेक्ट इन द
लॉ, वो उसका कोई विधि में प्रभाव ही नहीं होता, जैसे विवाह नहीं हुआ हो ऐसा ही प्रभाव होता है उसका। जबकि शून्यकरणीय विवाह न्यायालय की डिक्री द्वारा अकृत घोषित नहीं किया जाता है तो वो विधिमान्य विवाह का प्रभाव रखता है। एक विधिमान्य विवाह के जो भी इंसिडेंट होते हैं, जो प्रसंज्ञा होती है, वो जो है वो सारी रहेगी। शून्य विवाह में पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों का सृजन है वो नहीं होता है, देयर इज नो क्रिएशन ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज अमंग्स द पार्टीज। जबकि शून्यकरणीय विवाह में न्यायालय की अकृतता की डिक्री से पूर्व पक्षकारों के बीच जो है अधिकार एवं दायित्व विद्यमान रहते हैं। शून्य विवाह की दशा में पक्षकार दूसरा विवाह करते हैं तो द्विविवाह के अपराध के दोषी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट मैरिज ही वैलिड मैरिज नहीं है, इसलिए सेकंड मैरिज जो है वो क्या है, वैलिड मैरिज की श्रेणी में आएगा, तो बाइगमी की श्रेणी में नहीं आएंगे। जबकि शून्यकरणीय विवाह के दशा में पक्षकारों में से किसी एक के द्वारा दूसरा विवाह करने पर वो द्विविवाह के अपराध के दोषी है वो होंगे। शून्य विवाह को अकृत किसी भी पक्षकार की प्रेरणा पर, फर्स्ट पार्टी या सेकंड पार्टी किसी की प्रेरणा पर एन्युअल या अकृत घोषित किया जा सकता है। जबकि जो है वो शून्यकरणीय विवाह जो है वो पीड़ित पक्षकार, किसके, पीड़ित पक्षकार की प्रेरणा पर जो है विवाह को अकृत करने की डिग्री प्राप्त, जिसने फ्रॉड और फोर्स से कंसेंट ऑब्टेन किए, क्या उसके इंस्टेंस में मैरिज एन्युअल डिक्लेयर की जा सकती, नहीं। जो अफेक्टेड है उससे, जिससे ऑब्टेन की गई है फ्रॉड और फोर्स से, वो एग्रीव्ड पार्टी, उसके इंस्टेंस पर जो है उसकी प्रेरणा पर क्या है, अकृतता की डिग्री द्वारा विवाह जो है वो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, it is necessary for a male Hindu to take the consent of his wife for a valid adoption of his son or daughter. Explain with the help of the relevant provision and the circumstances when the consent of the wife is not required. एक हिंदू पुरुष के लिए पुत्र या पुत्री को वैध रूप से गोद लेने के लिए या दत्तक लेने के लिए उसकी पत्नी की सहमति लेना आवश्यक है। सुसंगत प्रावधानों की सहायता से उन परिस्थितियों को स्पष्ट करिए जब पत्नी की सहमति अपेक्षित नहीं है या लेना आवश्यक नहीं है। सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, कैपेसिटी ऑफ द मेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन। एनी मेल हिंदू हु इज ऑफ साउंड माइंड and is not minor means major has the capacity to take a son or daughter in adoption subject to this proviso, provided that if he has a wife living he shall not adopt except with the consent of his wife, means with the consent of wife he can adopt unless the wife has completely or finally renounced the word, has ceased to be Hindu or has been declared by a court of competent jurisdiction of unsound mind. Under these any one of the circumstances where the wife completely and finally renounced the word, and second has ceased to be Hindu, or third has been declared unsound mind by a court of competent jurisdiction, even without consent of wife, the Hindu male can adopt a son or daughter lawfully as per section 7 of this act. Explanation: if a person has more than one wife living at the time of the adoption, the consent of all the wives is necessary unless the consent of any one of them is unnecessary for any of the reason specified in the preceding proviso, means the has completely and finally renounced the word or has ceases to be Hindu or declared unsound mind. धारा 7 देखेंगे आप, हिंदू पुरुष की दत्तक लेने का सामर्थ्य और अधिकार। कोई हिंदू पुरुष किसी पुत्र या पुत्री का दत्तक ले सकता है। 3 बातें जरूरी है उसके लिए, स्वचित्त होना चाहिए, वो अप्राप्त वे न हो मीन्स प्राप्त वे हो, 18 वर्ष की आयु हो उसकी, दत्तक पत्नी की सहमति से लिया जाएगा, और एक से अधिक पत्नियां हैं तो सबकी सहमति से है वो दत्तक लिया जाएगा। कुछ अपवाद है जहां बिना पत्नी की सहमति से भी है वो दत्तक लिया जा सकता है। अग्रवर्णित परिस्थितियों में हिंदू पुरुष अपनी पत्नी की सहमति के बिना भी पुत्र या पुत्री को दत्तक ले सकता है। यदि पत्नी ने संसार को पूर्ण और अंतिम रूप से त्याग दिया है, वो सन्यासिनी आदि बन गई है, वो हिंदू नहीं रह गई है, दूसरे किसी धर्म में कन्वर्ट होने के कारण आदि, और सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय ने उसे क्या कर दिया है, अनसाउंड माइंड, विकृत चित्त घोषित कर दिया। इन परिस्थितियों में जो है एक हिंदू पुरुष अपनी पत्नी की सहमति के बिना भी वो विधिमान्य पुत्र या पुत्री का दत्तक ले सकता है। A Hindu male died intestate leaving behind father, widow, sister, a son
who has converted to the Islam, a married daughter and other son's widow who is residing with her parents. How and to whom his property will devolve, explain with the help of the relevant provision. एक हिंदू पुरुष जो है अपने पिता, विधवा बहन, एक पुत्र जिसने इस्लाम धर्म अपना लिया है, एक विवाहित पुत्री और एक अन्य पुत्र की विधवा जो कि अपने माता पिता के साथ निवास करती है, इनको छोड़कर निर्वसित मर जाता है। कैसे और किसे उसकी संपत्ति न्यागत होगी, सुसंगत प्रावधानों की सहायता से व्याख्या करिए। एज पर सेक्शन 8, 9 and 10 of the Hindu Succession Act 1956, the widow of the deceased will get the 1/4 of the share. The son of the deceased will get the 1/4 of the share. The married daughter of the deceased will get the 1/4 of the share, and widow of the predeceased son of the deceased will get the 1/4 of the share. The sister of the deceased, who is the second class heir, will not get the property as legitimate, and the father of the deceased, who is also the second class heir, will not get the property as legitimate. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8, 9 और 10 के अनुसार जो है इन 8, 9 और 10 तथा अनुसूची सपठित शेड्यूल, इंग्लिश में भी ऐड कर ले आप, रीड विद शेड्यूल, सपठित अनुसूची के अनुसार जो है मृतक की विधवा को जो है 1/4 अंश मिलेगा प्रॉपर्टी में से, मृतक का जो पुत्र है उसको भी 1/4 अंश मिलेगा, मृतक की विवाहित पुत्री को भी 1/4 अंश मिलेगा उसमें से, और मृतक के पूर्व मृत पुत्र की विधवा जो है उसको भी 1/4 अंश मिलेगा। मृतक की बहन जो कि द्वितीय वर्ग की उत्तराधिकारी है उसको संपत्ति न्यागत नहीं होगी, और मृतक का पिता भी द्वितीय वर्ग का उत्तराधिकारी, उसको भी संपत्ति न्यागत नहीं होगी। Who are the disqualified to inherit the property under the Hindu Succession Act? Explain the grounds which are not disqualification to inherit the property. ये इधर वाला फैन भी थोड़ा चालू करना कम नंबर पे। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त करने की क्या निर्योग्यताएं हैं, कौन व्यक्ति डिस्क्वालिफाइड है और वो कौन से आधार है जिन पर उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त करना निर्योग्यता नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 25, that is disqualification, murdered disqualified. A person who commits the murder or abets the commission of murder shall be disqualified from the inheriting the property of the person murdered or any other property in furtherance of the succession to which he or she committed or abetted the commission of the murder. 26 is also a disqualification, converts descendants disqualified. Where before or after the commencement of this act a Hindu has ceased or ceased to be a Hindu by conversion to another religion. Children born to him or her after such conversion and their descendants shall be disqualified, or their descendants shall be disqualified from the inheriting the property of any their Hindu relative unless the children or descendants are Hindus at the time when the succession opens. Velikanu versus R. Singha Periwal 2005 Supreme Court judgment. Court held that the respondent is barred from the claiming his father's property under section 25 and 27 of the Hindu Succession Act 1956. ये 26 होगा 27 की जगह, 25 and 26 of the Hindu Succession Act. When a son cannot inherit his whole stock including his wife is inherited according to the principle of the justice, equity and the good conscience. As a result, the wife has no claim to the property because her husband through whom she may have claim was disinherited it. Means the all persons which are in the same line of the concerned disqualified person, the all generation of that person, all relative of that person, they can claim through the disqualified person are also disqualified. And section 28, that is not disqualification to inherit the property, disease, defect etc. not to disqualify. No person shall be disqualified from succeeding to any property on the ground of any disease, defect or deformity or save as provided in this act on any other ground whatsoever.
धारा 25 और 26 ये डिस्क्वालिफिकेशन से कंसर्न है। हत्या करने वाला निर्हरित होगा। जो व्यक्ति हत्या करता है या हत्या करने का दुष्प्रेरण करता है, वो हत व्यक्ति की, जिसकी हत्या की गई है, उस व्यक्ति की संपत्ति या किसी अन्य संपत्ति को जिसमें उत्तराधिकार को अग्रसर करने के लिए उसने हत्या की थी या हत्या करने का दुष्प्रेरण किया था, विरासत में उन्हें पाने से क्या होगा, निर्हरित होगा। वो संपरिवर्तितों के वंशज निर्हरित होगा। जो कन्वर्टर है वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, उसके जो डिसेंडेंट है, चिल्ड्रन और आगे के जो डिसेंडेंट, वो डिस्क्वालिफाइड होंगे। जहां कोई हिंदू इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात धर्म संपरिवर्तन के कारण हिंदू नहीं रह गया है या न रहे, तो वहां ऐसे संपरिवर्तन के पश्चात, ऐसे धर्म संपरिवर्तन के पश्चात पैदा हुए उसके अपत्य और उस अपत्य के वंशज जो है अपने हिंदू संबंधियों से में से किसी की संपत्ति को विरासत में प्राप्त करने के लिए निर्हरित होंगे, सिवाय जबकि ऐसे अपत्य या उस अपत्य के वंशज उस समय जब उत्तराधिकार ओपन होता है, खुलता है, तब वो हिंदू हो। वैली कन्नू बनाम आर सिंह का परिवाल 2005 सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने यह माना कि यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को पाने के लिए निर्योग्य हो जाता है धारा 25 या 26 में से किसी कारण से, तो उसके पुत्र पत्नी आदि भी जो है वो संपत्ति को प्राप्त करने के लिए क्या है वो निर्योग्य हो जाएंगे। धारा 28 रोग त्रुटि आदि जो है ये निर्योग्यता नहीं। कोई व्यक्ति कोई बीमार है, कोई शारीरिक त्रुटि है, विकलांग है, पोलियो है, एटसेट्रा है, HIV है, कैंसर है, क्या उस बीमारी या शारीरिक या मानसिक जो है वो त्रुटि के कारण जो है वो सक्सेशन में प्रॉपर्टी प्राप्त करने के लिए डिस्क्वालिफाइड होगा? नहीं, इन कारणों से डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा। कोई व्यक्ति संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त करने से किसी रोग, किसी त्रुटि या अंग विकार के आधार पर या इस अधिनियम में जो है वो यथा उपबंधित के सिवाय जो है किसी भी अन्य आधार पर, चाहे वो कोई क्यों न हो, निर्हरित नहीं होगा। इस अधिनियम में जो 25 में और 26 में आधार पढ़े आपने, मर्डरर और कन्वर्टर्स डिसेंडेंट्स, उनके सिवाय अन्य कोई और आधार भी नहीं होगा वो संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त करने से वो अयोग्य होने का, निर्योग्य होने का। डिस्क्राइब द एयर ऑफ द सेकंड क्लास, द्वितीय वर्ग के जो उत्तराधिकारी है उनका उल्लेख करिए। देयर आर 9 एंट्रीज इन द सेकंड क्लास एयर। द एंट्री नंबर फर्स्ट, ओनली द सोल एयर, दैट इज द फादर ऑफ द डिसीज Hindu male. Second entry, sons, daughters, sons, daughters, daughter, brother and sister. Sons, daughters, son, and sons, daughters, daughter, and brother and sister cover under the second entry. Third entry, the daughters, sons, sons, daughters, sons, daughter, daughters, daughters, son, and daughters, daughters, daughter. Fourth, brother's son, sister's sons, brother's daughter, and sister's daughter. Fifth, father's father means grandfather and father's mother. Then father's widow means stepmother and brother's widow. Next, father's brother, uncle, tau and etc. and father's sister, aunt, mother's father and mother's mother in 8th entry, and last, mother's brother and mother's sister. These are the 9 entries of the second class heir of the Hindu intestate male. Explanation in this schedule, references to the brother or sister do not include the references to the brother or sister by uterine blood. Include only the half blood and full blood. द्वितीय वर्ग के उत्तराधिकारी आप देखेंगे 9 प्रविष्टियां हैं टोटल इसके अंदर। पहली प्रविष्टि के अंदर केवल मृतक का पिता आता है, दूसरी में पुत्र की पुत्री का पुत्र, देन पुत्र की पुत्री, भाई और बहन। पुत्र की पुत्री मीन्स पोती, पोती का पुत्र, पुत्र की पुत्री की पुत्री, पोती की जो है वो पुत्री, एंड देन भाई और बहन। पिता जो फर्स्ट एंट्री में आता है और ब्रदर और सिस्टर जो है हिंदू मेल के वो सेकंड एंट्री में, सेकंड क्लास एयर में कवर होंगे। देन पुत्री के पुत्र का पुत्र, पुत्री के पुत्र की पुत्री, पुत्री की पुत्री का पुत्र और पुत्री की पुत्री का पुत्र मीन्स दोहिता, दोहिती आदि जो, भाई का पुत्र और भाई का पुत्र, बहन का पुत्र,
और भाई की पुत्री और बहन की पुत्री। मीन्स भतीजा भतीजी और भांजा भांजी। पिता का पिता दादा और पिता की माता दादी। पिता की विधवा सौतेली माता और भाई की विधवा मीन्स विधवा भाभी। पिता का भाई चाचा ताऊ और पिता की बहन बुआ। माता का पिता नाना और माता की माता नानी। और लास्ट में मामा और मौसी। माता का भाई और माता की बहन। ये जो है वो टोटल 9 एंट्रीज है या वो द्वितीय श्रेणी के वो उत्तराधिकारियों की। और स्पष्टीकरण देखेंगे आप, अनुसूची में भाई और बहन शब्द में एकोदर रक्त से संबंधित भाई बहन शामिल नहीं है। मीन्स पूर्ण रक्त और अर्ध रक्त वाले जो भाई बहन है वो शामिल। एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन द बातिल एंड द फासिद मैरिज अंडर द मुस्लिम लॉ। मुस्लिम विधि के अंतर्गत बातिल और फासिद विवाह को विभेदित करिए, या जो है वो शून्य विवाह और अनियमित जो है वो विवाह है उसको है वो उनके बीच में डिफरेंसेस बताइए। डिफरेंस बिटवीन द बातिल एंड फासिद मैरिज। If the impediment is absolute and permanent, then marriage is void, and if the impediment is relative and temporary, then the marriage is irregular. That impediment may be removed by the certain circumstances. Impediments can never be set aside. In other words, a void marriage is void ab initio and can never become valid, whereas an irregular marriage or the fasid marriage, where the provisions are relative, can become valid if those defects are cured. Marriage does not create any civil and rights and obligation between the wife and the husband. Means there is no creation of the rights and obligation in batil marriage or void marriage, whereas in irregular marriage the some legal consequences ensure provided the marriage has been consummated between the husband and wife. Sexual intercourse is void. Sexual intercourse in void marriage is unlawful and known as zina, and the children born of the such union are illegitimate, whereas in fasid marriage, irregular marriage, the children are considered legitimate children of the such couple or the husband and wife. बातिल विवाह और फासिद विवाह में क्या अंतर है? विवाह में जो बाधा है, ऑब्स्टकल है, इम्पेडिमेंट है, वो पूर्ण है और स्थायी है, तो विवाह क्या है? शून्य। जैसे कंसंग्युइटी, फॉस्ट्रेस एटसेट्रा, इस तरीके की जो है वो बाधा है वो एब्सोल्यूट यदि इनकैपेसिटी है तो वॉइड मैरिज है वो होगी, और यदि बाधा सापेक्षिक और अस्थायी है तो विवाह क्या होगा? फासिद होगा, अनियमित होगा। जाई एब्सेंस ऑफ विटनेसेस ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड एटसेट्रा, अनलॉफुल कंजक्शन। बाधाओं को कभी भी रद्द नहीं किया जा सकता या हटाया नहीं जा सकता। दूसरे शब्दों में एक शून्य विवाह जो है वो क्या है? प्रारंभ से ही शून्य है। क्या है वो? एक शून्य विवाह जो है एब इनिशियो वॉइड है, वो प्रारंभ से ही है वो शून्य है और वो कभी भी विधि मान्य है वो नहीं हो सकता। जबकि अनियमित विवाह या फासिद जो विवाह है वो निषेध सापेक्ष होते हैं और विधि मान्य हो सकता है यदि उन दोषों को है वो क्या कर दिया जाए? दूर है वो कर दिया जाए। शून्य विवाह या बातिल विवाह के अंदर पक्षकारों के बीच कोई अधिकार और दायित्व सृजित नहीं होता है, जबकि फासिद विवाह में पक्षकारों के बीच अधिकार और दायित्वों का सृजन होता है। बातिल विवाह से पैदा हुए बच्चे क्या है? अधर्मज होते हैं, और शून्य विवाह में लैंगिक संभोग जो है वो अवैध या जीना है वो कहलाता है। जबकि विवाह की पूर्णावस्था में पहुंचने के पश्चात फासिद विवाह से पैदा हुए बच्चे हैं वो क्या होते हैं? वो धर्मज लेजिटिमेट जो बच्चे हैं वो माने जाते हैं। तो इस तरीके से आप बातिल मैरिज और फासिद जो मैरिज है उनके बीच में व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द खुला एंड मुबारत? खुला और मुबारत में क्या अंतर है? दोनों कंसेंट से होने वाले जो है वो डिवोर्स के रूप में, विवाह विच्छेद के रूप में, बट देर आर सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन खुला एंड मुबारत। खुला इज ए रिडम्पशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, whereas mubarat is the mutual release from the marriage tie. Khula, there must be an offer made by the wife and its acceptance by the husband, whereas in mubarat
any of the two may make the offer and be accepted by the other party. A consideration passes from the wife to the husband in khula, whereas in mubarak the question of consideration does not arise. And one more difference, the aversion is on the side of the wife. In khula, the aversion is or the dislike on the part of the wife, whereas in mubarak there is a mutual aversion. खुला और मुबारक में क्या क्या अंतर है, दोनों सहमति से होने वाले विवाह विच्छेद के रूप में मुस्लिम विधि के अंतर्गत, बट फिर भी इनके बीच में कुछ अंतर है. खुला जो है वो विवाह की संविदा का एक तरीके से मोचन या रिडम्पशन है, उसको वापस लेने से, जबकि मुबारक जो है विवाह बंधन से पारस्परिक मुक्ति है, म्यूचुअल जो है वो रिलीज है. खुला में पत्नी द्वारा प्रस्ताव दिया जाता है और पति द्वारा उसे स्वीकार किया जाना चाहिए विवाह को विघटित करने के लिए, जबकि मुबारक में दोनों में से कोई भी पक्षकार, पति या पत्नी जो है वो प्रस्ताव दे सकता है, दूसरा पक्षकार उसको क्या है स्वीकार कर सकता है. खुला में प्रतिफल पत्नी के द्वारा पति को दिया जाता है उस विवाह से मुक्ति या वो पाने या विवाह के बंधन से मुक्ति पाने के लिए, जबकि मुबारक में प्रतिफल का कोई प्रश्न ही नहीं होता है, कोई कंसीडरेशन है ही नहीं वहां. और खुला में जो है विवाह को कंटिन्यू रखने में अरुचि या एवर्जन किसके पार्ट पर है, वह अरुचि पत्नी की तरफ से होती है, जबकि मुबारक में जो है वो पारस्परिक अरुचि है वो होती है, दोनों की है वो अरुचि होती है. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द ट्रिपल तलाक. ट्रिपल तलाक इन कंट्रावेंशन ऑफ द मुस्लिम वीमेन, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑन द मैरिज एक्ट 2019 एंड द नेचर ऑफ द ऑफेंस एंड ऑल्सो पनिशमेंट देयरऑफ. मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019, इसके उल्लंघन में किए गए 13 तलाक में अपराध की प्रकृति क्या होगी, उससे संबंधित जो दंड के प्रावधान है उनको भी एक्सप्लेन करिए. एज पर सेक्शन 2C ऑफ द दिस एक्ट, तलाक मीन्स द तलाक ई बिद्दत. इफ तलाक वर्ड इज यूज अंडर द एनी प्रोविजन ऑफ द दिस 2019 एक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द तलाक? तलाक मीन्स द तलाक ई बिद्दत और एनी अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ द तलाक having the effect of the instantaneous and irrevocable divorce pronounced by the Muslim husband. Section 3, the talaq to be void and illegal. Any pronouncement of the talaq means the talaq, pronouncement of talaqul biddat by a Muslim husband upon his wife by words either spoken or written or in electronic form or in any other manner whatsoever, the such talaq shall be void and illegal. Section 7, offense to be cognizable, compoundable, etc. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1973, an offense punishable under this act shall be cognizable if information relating to the commission of the offense is given to an officer in charge of a police station by the married Muslim women upon whom the talaq is pronounced or any person related to her by the blood or the marriage. An offense punishable under this act shall be compoundable at the instance of the married Muslim women upon whom the talaq is pronounced with the permission of, that compoundable with the permission of the magistrate on such terms and conditions as he may determine. And no person accused of an offense punishable under this act shall be released on the bail unless the magistrate on an application filed by the accused and after hearing the married Muslim women upon whom the talaq is pronounced is satisfied that there are reasonable grounds for granting bail to the such person. धारा 2G देखेंगे आप 2019 के अधिनियम के अंदर, उसमें तलाक को परिभाषित कर रखा है. तलाक का मतलब सारे वो तलाक उल सुन्नत वगैरह नहीं, इस एक्ट में कहीं पर भी तलाक वर्ड यूज लिया गया तो उसका मतलब तलाक उल बिद्दत या उसी नेचर का, इसी प्रकार का कोई और अप्रतिष्ठनीय तलाक. तलाक से तलाक उल बिद्दत या तलाक उल बिद्दत या तलाक का कोई अन्य वैसा ही रूप अभिप्रेत है जो किसी मुस्लिम पति द्वारा उद्घोषित तुरंत और अप्रतिसरणीय विवाह विच्छेद का प्रभाव है वो रखने वाला है, वो है वो तलाक शब्द के अंदर है वो कवर होगा. धारा 3, तलाक का शून्य और अवैध होना. किसी मुस्लिम पति द्वारा उसकी पत्नी के लिए शब्दों द्वारा, चाहे वो बोले गए हो या लिखे गए हो या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या किसी अन्य रीति में हो, वे जो भी हो, तलाक की कोई भी उद्घोषणा जो है वो क्या होगी, शून्य और अवैध है वो होगी, वॉइड भी होगी वो और इलीगल भी है वो होगी.
अपराध जो है इस अधिनियम के अंतर्गत जो है ये ट्रिपल तलाक देना एक ऑफेंस भी है। तो ये जो ऑफेंस होगा ये संज्ञेय होगा और इसके साथ साथ समनीय भी प्रकृति है इसकी। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध क्या होगा, संज्ञेय होगा, यदि अपराध किए जाने से संबंधित इतला किसी पुलिस थाने के भारतीय अधिकारी को उस विवाहित मुस्लिम महिला जिसके लिए तलाक की उद्घोषणा की गई है या उसके रक्त या विवाह द्वारा संबंधित किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दी गई, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। मीन्स पुलिस जो है वो विदाउट वारंट अरेस्ट करने की पावर रखेगी उस ऑफेंस में। और इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध जो है उस विवाहित मुस्लिम महिला के आवेदन पर जिसके लिए तलाक की उद्घोषणा है वो की गई या जिस पर तलाक की उद्घोषणा की गई है, मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा से, मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा से जो है ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो मजिस्ट्रेट अवधारित करे, क्या है, कंपाउंडेबल, समनीय भी होगा यह अपराध संज्ञेय के साथ साथ। इस अधिनियम के अधीन अपराध, इस अधिनियम के अधीन अपराध के अभियुक्त को जो है जमानत पर तब तक छोड़ा नहीं जाएगा जब तक जो है अभियुक्त द्वारा फाइल किए गए आवेदन पर और उस विवाहित मुस्लिम महिला जिसके लिए तलाक की उद्घोषणा की गई है सुनवाई करने के पश्चात मजिस्ट्रेट का यह समाधान नहीं होता है, हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति को जमानत मंजूर करने के युक्त आधार। यदि बेल एप्लीकेशन पेश की जाएगी तो उस विवाहित जो है वो महिला को भी अब वो सुना जाएगा और सुनने के बाद यदि कोर्ट की ओपिनियन ये हो कि इसे दी जानी चाहिए जमानत, तभी दी जाएगी, सामान्यतः इसमें जमानत नहीं दी जाएगी। नहीं। State the primary and secondary heirs in the Sunni sect and state the person exclude from the inheritance under the Muslim law। सुन्नी विधि के अंदर प्राथमिक और द्वितीय उत्तराधिकारियों का उल्लेख करिए और मुस्लिम विधि में उत्तराधिकार से अपवर्जित व्यक्तियों का भी उल्लेख कीजिए। प्राइमरी heirs under the Sunni sect, the relations by the marriage and blood, Quranic sharer, first category is the Quranic sharer, second is the residuary and third is the distant kindreds, distant kindred. These are the primary heirs to inherit the property. Quranic sharer, there are 12 relatives who have got the certain prescribed shares under the Quran. Residuaries, they are all the male agnates, descendant, ascendant of collateral, and only 4 females who are sharer but are converted into the residuary in the some cases. They have been divided into the 4 groups in order of the succession, descendant, ascendant, and descendants of father and descendants of the true grandfather, how high soever. Distant kindred, it is the third category of the primary heirs. This class covers the all other blood relations. The heir which are neither Quranic sharer and no residuary are called the distant kindred. Then the secondary or the unrelated successor, successor by contract, person who derive his right of succession under a special kind of the contract with the deceased. It may be in case of the friendship etc. with the any other person. Acknowledged kinsman is a person of unknown descent in whose favor the deceased has made in acknowledgement of kinship, not through himself but through another. Universal legatee is a person to whom the deceased had left the whole in his property by the will. And next, government or waqf board, government or state waqf board. In India, in the absence of the all heirs, the property goes to the government by the operation of the law, and this law is known as the law of escheat. However, under Islamic system, the property will not devolve upon the government by way of the inheritance as ultimus heirs, but falls into the Bait ul Mal, the public treasury for the benefit of the Muslims, and that is the Waqf board. Rules of succession. When Quranic sharer and residuary heirs are participate in the inheritance, then the claim of Quranic share is satisfied first, and if after them there is any remainder, it is to distribute it amongst the residuaries according to the principle of Rad. Second, when Quranic sharer and distant kindreds participate in the inheritance, only Quranic sharer will receive the entire property, distant kindred will get nothing.
When the residuary heirs and the distant kindreds are participate in the inheritance, then the entire property will be received by the residuary heirs and distant kindreds will get nothing. When any Quranic sharer and residuary heir of a Muslim deceased are not present and there is a distant kindred, then the property will be received by the distant kindred as inheritance. Every type of property, whether immovable, movable, tangible, intangible, is inheritable under the Muslim law, and the right of the any potential heir in the property will arise only when the owner dies. And in Muslim law, a living person has no heir. Space, successions, etc. not applicable in case of the Muslim law. In Muslim law, all persons or heirs are capable of the inheriting except those persons who are excluded from the law. Even a child in womb is considered capable of inheriting. All these are the rules of succession or the inheritance under the Muslim law. The person who are excluded from the succession or inheritance under Muslim law, according to the rule of exclusion, certain persons are disqualified to inherit the property of another person, and such person, though heirs are excluded from the inheritance due to the certain impediments imposed on them by the Muslim law, and these impediments or disabilities are personal and are known as the grounds of exclusion. First, those grounds according to the pure Muslim law are follows: homicide. A person who causes the death of a person is not entitled to inheritance of that property. In Sunni law, not entitled to inherit the property of that person whether death caused intentionally or by accident, and in Shia law, this entitled only when the death is caused intentionally. Illegitimacy, in Sunni law, entitled to inherit from the mother but not from the father, whereas in Shia law, disqualified to inherit both his father and mother. Slavery is slave are not entitled to inherit the property. Difference of religion, a non-Muslim could not inherit from a Muslim. Difference of allegiance, not this ground is not permissible in India. Estoppel in succession, a person who first denies his relationship with the prospectus cannot be allowed subsequently to turn his back and claim the inheritance when succession opens. Denial of relationship operate as estoppels in succession. Under customary law, a daughter may be excluded from the right of inheritance if there is a valid custom, and stepson or daughter are not entitled to inherit from the stepfather or mother. दाय या विरासत जो है, इसका क्या अर्थ है? किसी मुस्लिम की मृत्यु होने पर उसके वारिसों द्वारा संपत्ति को प्राप्त करना जो है, विधि की प्रक्रिया से संपत्ति को प्राप्त करना, ये विरासत या दाय कहलाता है। सुन्नी शाखा में प्रमुख उत्तराधिकारी कौन कौन से? कुरानिक हिस्सेदार है, अवशिष्ट है और तीसरा दूरस्थ संबंधी है। सुन्नी शाखा के अंदर द्वितीयक उत्तराधिकारी कौन कौन से? अभिस्वीकृति के द्वारा वारिस है, संविदा द्वारा वारिस है, सार्वभौमिक वसीयतदार है और सरकार या वक्फ बोर्ड है। कुरानिक हिस्सेदार जो सबसे पहले हमने प्रमुख उत्तराधिकारियों में पढ़ा, ये मृतक के ऐसे वारिस हैं जिनके अंश कहाँ है? कुरान में निर्धारित है, वे कुरानिक हिस्सेदार कहलाते हैं और संपत्ति सर्वप्रथम कुरानिक हिस्सेदार को ही मिलती है। प्रेफरेंशियल राइट प्रॉपर्टी को ऑब्टेन करने का वो किसका है? कुरानिक हिस्सेदार का। जैसे आप देखेंगे कुरान में पति का सामान्यतः 1/2 शेयर होता है, आधा, और कोई संतान है उसका तो 1/4 हो जाता है, आधे का भी आधा। 1/4 क्या है? आधे का भी आधा, 1/4 हो जाएगा उसका। पिता का सामान्यतः 1/3 हिस्सा होता है और संतान होने पर 1/6 हो जाएगा उसका। माता का सामान्यतः, इंग्लिश वाले भी नोट कर लेना, ये शायद था नहीं इंग्लिश में, माता का सामान्यतः 1/3 हिस्सा होता है और उसकी भी कोई सन डॉटर आदि संतान है तो 1/6 हो जाता है, मीन्स आधा हो जाता है संतान होते। विधवा का सामान्यतः 1/4 होता है और उसकी भी कोई संतान है तो 1/8 हो जाएगा। पुत्री को सामान्यतः 1/2 आधा हिस्सा होता है और 2 या अधिक पुत्रियां हो तो सब मिलाकर 2/3 हिस्सा जो है वो प्राप्त करते हैं। तो ये कुछ हिस्से जो है ये कुरान में ही निर्धारित है इनके, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? कुरानिक हिस्सेदार कहलाते हैं। और ऐसे 12 उत्तराधिकारी है कुरान के अंदर, कुछ मैंने आपको नोट करवाए, अभी भी ये लिस्ट कंप्लीट नहीं। अवशिष्ट उत्तराधिकारी ऐसे उत्तराधिकारी जिनको संपत्ति कुरानिक हिस्सेदारों को प्राप्त होने के बाद शेष बचती है
तो उनको प्राप्त करने के हकदार होते हैं। ऐसे क्या कहलाते हैं, इससे अवशिष्ट उत्तराधिकारी कहलाते हैं। जैसे पुत्र है, चाचा है, पितामह है आदि, ये सब है वो क्या है, ये रेसिड्यूरी है। सन जो है या अंकल है या फादर्स फादर है, ये सब रेसिड्यूरी में कवर होते हैं। पहले है वो कुरानिक हिस्सेदारों को मिलेगी और कुछ बचता है तो फिर इन रेसिड्यूरी को भी है वो मिलेगा। दूरस्थ संबंधी जो है मृतक के ऐसे वारिस से जो न तो कुरानिक हिस्सेदार है और न अवशिष्ट उत्तराधिकारी, वो क्या कहलाते हैं, वो दूरस्थ संबंधी या वो डिस्टेंट किंडर्ड है वो कहलाते हैं। जैसे पुत्री की संतानें, दोहिता दोहिती जो है ये डिस्टेंट में कवर होंगे। पौत्री की संतानें, माता का पिता मीन्स नाना है, दादी का पिता है, ये सब दूरस्थ उत्तराधिकारी जो है वो संपत्ति दाय में तभी प्राप्त करेंगे जब कोई कुरानिक हिस्सेदार और अवशिष्ट उत्तराधिकारी में से कोई अस्तित्व में नहीं है। द्वितीय वर्ग के उत्तराधिकारियों की थोड़ी सी डिटेल देखें हम। संविदा द्वारा उत्तराधिकारी, जब कोई मुस्लिम किसी व्यक्ति से संविदा कर लेता है कि उसकी मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी वह होगा, तब वो संविदा द्वारा उत्तराधिकारी कहलाता है। और ये सामान्यतः ऐसा जो है फ्रेंडशिप के केस में, मित्रता के मामले में ऐसा होता है। अभिस्वीकृति द्वारा उत्तराधिकारी, ये वंशजों में काफी दूर की पीढ़ी के या डिग्री के होते हैं, परंतु मृतक उनके उत्तराधिकारी होने की एक्नॉलेजमेंट या अभिस्वीकृति दे देता है, तो ऐसे व्यक्ति अभिस्वीकृति द्वारा उत्तराधिकारी कहलाते हैं। मृतक द्वारा किसी व्यक्ति को चाचा के रूप में एक्नॉलेज किया गया है तो वो है वो क्या है, अभिस्वीकृति के द्वारा उत्तराधिकारी। सार्वभौमिक वसीयतदार, उपयुक्त वर्णित वारिसों में से कोई भी नहीं हो, न प्रथम श्रेणी के जो पड़े कुरानिक हिस्सेदार, रेसिड्यूरी, डिस्टेंट किंडर, वो भी नहीं है, और ये एक्नॉलेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट इनमें से भी कोई नहीं है, तो फिर न होने पर एक मुस्लिम जो है वसीयत के द्वारा सार्वभौमिक वसीयतदार के रूप में उत्तराधिकारी की घोषणा कर सकता है। सारी प्रॉपर्टी उसको मैं विल कर रहा हूँ, वसीयत कर रहा हूँ, ऐसा सार्वभौमिक वसीयतदार के रूप में घोषणा की जा सकती है। सरकार या वक्फ बोर्ड, उपरोक्त वर्णित वारिसों में से किसी के नहीं होने पर संपत्ति है वो किसमें, राज्य सरकार में, या वक्फ बोर्ड जो एक राज्य सरकार का एक डिपार्टमेंट या वो एक एजेंसी है, उनमें जो है वो निहित होगी। उत्तराधिकार और दाय के नियम है वो क्या है, जब कुरानिक हिस्सेदार और अवशिष्ट उत्तराधिकारियों के बीच उत्तराधिकार में वो भाग ले रहे हो, तब प्रथम तक कुरानिक हिस्सेदार संपत्ति दाय में प्राप्त करेंगे और शेष कुछ रहती है तो अवशिष्ट के साथ साथ कुरानिक हिस्सेदार प्राप्त करेंगे। इसको रद्द का सिद्धांत कहते हैं। क्या ये रद्द के सिद्धांत के अनुसार जो है वो प्राप्त करेंगे। जब कुरानिक हिस्सेदार और दूरस्थ उत्तराधिकारियों के बीच में उत्तराधिकार हो रहा हो या विरासत हो रही हो, तो केवल कुरानिक हिस्सेदार संपूर्ण संपत्ति प्राप्त करेंगे, दूरस्थ संबंधियों को कुछ नहीं मिलेगा। जब अवशिष्ट उत्तराधिकारी और दूरस्थ संबंधी उत्तराधिकार में भाग ले रहे हो, तब संपूर्ण संपत्ति जो है अवशिष्ट उत्तराधिकारियों को दाय में प्राप्त होगी, दूरस्थ संबंधियों को कुछ नहीं मिलेगा उसमें। दूरस्थ को कब मिलेगा, जब न कुरानिक है न कोई अवशिष्ट है। तब जब किसी मुस्लिम मृतक का कोई कुरानिक हिस्सेदार और अवशिष्ट उत्तराधिकारी अस्तित्व में नहीं हो और दूरस्थ संबंधी कोई हो, तब संपत्ति दाय में दूरस्थ संबंधी को जो है वो प्राप्त होगी। प्रत्येक प्रकार की संपत्ति जो है वो दाय योग्य मानी जाती है, चाहे वो स्थावर है, चाहे वो जंगम है, चाहे वो मूर्त है या अमूर्त है। सभी प्रकार की प्रॉपर्टी इनहेरिटेबल या विरासत योग्य या है वो दाय योग्य मानी जाती है मुस्लिम विधि के अंदर। किसी भी संभावित उत्तराधिकारी का संपत्ति में हक तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक उस संपत्ति के स्वामी की मृत्यु नहीं हो जाए। मुस्लिम विधि में जीवित व्यक्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है। मुस्लिम विधि में दाय से अपवर्जित किए गए व्यक्तियों के सिवाय सभी व्यक्ति दाय में सक्षम होते हैं। इवन चाइल्ड इन वॉर्म जो है गर्भस्थ शिशु है, उसको भी वो दाय योग्य माना जाता है या वो इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए एंटाइटल कंसिडर किया जाता है। उत्तराधिकार से अपवर्जित व्यक्ति कौन है या दाय से जो है वो अपवर्जित व्यक्ति कौन है, मानववध करने वाला व्यक्ति, होमिसाइड जिसने किया है। सुन्नी विधि में चाहे मानववध शाह से किया है या आकस्मिक वध, दोनों परिस्थितियों में वो अपवर्जित रहेगा। और सिया में शाह से मानववध किया है तभी संपत्ति को दाय में प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं होगा। यदि एक्सीडेंटल हो गया है तो उस केस में सिया स्कूल के अंदर जो है वो क्या है, वो हकदार बना रहेगा। अधर्मस्थ संतान, सुन्नी में केवल माता से संपत्ति प्राप्त करता है और सिया में पूर्णतः अपवर्जित है, न पिता से और न माता से। दास, तो दास संपत्ति को दाय में प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं होते। धर्म में भिन्नता, गैर मुस्लिम जो है वो संपत्ति को दाय में प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं है।
देश की भिन्नता, ये वाला भारत में मान्य नहीं है। उत्तराधिकार में विवरण, कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं अमुक व्यक्ति का वारिस नहीं हूं, तब तत्पश्चात वो ये नहीं कह सकता कि वो उसका वारिस है, वो विवरण द्वारा अपवर्जित हो जाएगा। हुजुब का अपवर्जन का सिद्धांत, जिसके माध्यम से वारिस है उसे जीवित रहने पर उसके वारिस को हिस्सा नहीं मिलेगा। हुजुब का अपवर्जन का सिद्धांत, इंग्लिश में शायद नहीं था ये। हुजुब का मतलब ये हुआ कि मान लो ग्रैंडफादर की डेथ हुई और प्रॉपर्टी है वो मिलनी है, फादर जीवित है और फादर की अगली पीढ़ी भी कोई सन जीवित है, मीन्स उसका ग्रैंडफादर का जो है वो ग्रैंडसन जो है वो जीवित है। क्या ऐसी स्थिति में ग्रैंडसन प्रॉपर्टी को प्राप्त करेंगे? नहीं, वो फादर के थ्रू प्राप्त करेंगे प्रॉपर्टी। यदि फादर जीवित है, बीच की कोई कड़ी, तो फादर को प्रॉपर्टी मिलेंगे, उसकी नेक्स्ट जनरेशन है उसको नहीं मिलेगी। यही हुजुब का अपवर्जन है। पुत्री दाय के अधिकार का अपवर्जन जो है, वैध रूढ़ी में पुत्री के अपवर्जन को मान्यता दी गई। पुत्री को भी दाय के अधिकार से अपवर्जित किया जा सकता है यदि ऐसी कोई वैलिड कस्टम हो, वैध रूढ़ी हो कि पुत्री को दाय में संपत्ति नहीं मिलेगी, केवल पुत्रों को मिलेगी, ऐसी वैलिड कस्टम हो तो वो अपवर्जित हो सकती है। सौतेले पुत्र और पुत्रियां अपने सौतेले माता पिता से संपत्ति को दाय में प्राप्त नहीं करते हैं। सिमिलरली स्टेप मदर और फादर भी, सौतेले माता पिता भी अपने सौतेले पुत्र और पुत्रियों से संपत्ति को दाय में प्राप्त नहीं करेंगे। ये भी एक इंग्लिश में एक्स्ट्रा जो, सॉरी हिंदी में एक्स्ट्रा जो इंग्लिश में नहीं था। एक्सप्लेन द अडॉप्शन अंडर द मुस्लिम लॉ, मुस्लिम विधि के अंतर्गत दत्तक से संबंधित जो विधि है ये उसको है वो एक्सप्लेन करिए। अकॉर्डिंग टू द मनु, adoption is the taking of a son or a substitute for the failure of the male issue. Thus, it is the transplantation of a son from the family in which he is born into the another family by gift made by his natural parents to the adoptive parents. Islam does not recognize the adoption. In Muhammad Allahdad Khan versus Muhammad Ismail 1888, the Justice Mahmood remarked that there is nothing in the Mohammedan law similar to the adoption as recognized in Roman and the Hindu system. The Mohammedan law does not recognize the adoption as a mode of filiations. But the Sabnam Hasmi versus Union of India 2014 Supreme Court judgment, the Supreme Court of India observed that the Juvenile Justice Act 2015, now the 2015, is an enabling legislation that gives the prospective parent the option of adopting an eligible child by following the procedure prescribed by the Act's rules and the Central Adoption Resource Agency guideline as notified under the Act, and the Act does not mandate any compulsive action by any the prospective parents, leaving the such person with the liberty of assessing the provisions of the Act if he so desires. And under this Act, the Muslim can adopt any child irrespective of the religion, maybe a Muslim or maybe a Hindu or Isai or Christian etc., any other religion. मनु के अनुसार दत्तक ग्रहण पुत्र को लेना है जो पुरुष संतान के नहीं होने का विकल्प है। इस प्रकार यह उस परिवार से पुत्र का प्रत्यास्थापन है जिसमें वो जन्म लेता है, उसके प्राकृतिक माता पिता के द्वारा दत्तक माता पिता को उपहार के रूप में जो है वो दूसरे परिवार के अंदर जो है वो दिया जाता है उसको। इस्लाम जो है वो सामान्यतः दत्तक ग्रहण को जो है वो मान्यता नहीं देता है। मोहम्मद अलादाद खान बना मोहम्मद इस्माइल 1888 का जजमेंट है जिसमें न्यायमूर्ति महमूद ने टिप्पणी की थी कि मुस्लिम विधि में रोमन और हिंदू पद्धति में मान्यता प्राप्त दत्तक ग्रहण के समान कुछ भी नहीं है और मुस्लिम विधि दत्तक ग्रहण को संतान प्राप्ति के तरीके के रूप में मान्यता नहीं देती है। सबनम हाशमी बनाम भारत संघ 2014 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि किशोर न्याय अधिनियम जो है वर्तमान का, उस समय तक तो 2000 का ही था जब ये जजमेंट आया था, तब 2000 का एक्ट ही इन्फोर्स में था, बट वर्तमान में हम इसको जो एग्जिस्टिंग लॉ है 2015 का एक्ट, ये एक इनेबलिंग लॉ है, समर्थकारी विधि है जो भावी माता पिता को अधिनियम, नियम, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके और योग्य बच्चे को दत्तक में लेने का विकल्प देता है। जैसा कि अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है, यह अधिनियम किसी भी भावी दत्तक माता के लिए बाध्यकारी
कार्रवाई का आदेश है वो नहीं देता है, तथा ऐसे व्यक्ति को यदि वो चाहे तो अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस एक्ट के अंतर्गत कोई मुस्लिम भी जो है वो किसी भी बच्चे को, चाहे वो मुस्लिम धर्म का हो या अन्य धर्म का, उसको अडॉप्शन में ले सकता है, दत्तक में ले सकता है। और बहुत सारे लोगों ने जो है वो लिए भी है। किसने लिए अर्जुन? एक्ट्रेस नहीं, हाँ, ये बॉलीवुड वाले जो है वो मुस्लिम कुछ स्टार्स है, उन्होंने इसी प्रोविजन के अंदर, हाँ, तो उन्होंने बच्चे जो है वो अडॉप्ट है वो किए हैं इस एक्ट के वो अंतर्गत। और उसमें कोई बच्चों की संख्या की भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपके पहले से बच्चे हैं फिर भी आप अडॉप्शन में ले सकते हो और दूसरे रिलीजन से भी ले सकते हो।